दोस्तों, आज विमर्श का कार्यक्रम था और यूनाइटेड नेशंस की रेलेवेंसी पर चर्चा करी गई। शिवम भाई, सचिन भाई और मैंने और बहुत सारे लोगों ने अपनी बात रखी और अभिषेक शर्मा भाई ने अच्छा काउंटर किया सभी लोगों ने एक दूसरे को अच्छा काउंटर। सबसे पहले शिवम भाई बोलने आए। शिवम भाई ने पक्ष रखा अपना और काफ़ी अच्छे पक्ष रखे। वही मैंने भी 1991 के बाद जो भी हुआ मैंने उसका पक्ष रखा। आप सुन सकते हैं। तब यदि आप खुद को बचाना है अपनी जरूरत को फिर से कि हाँ मैं डिलीवर हूँ, काम बदल जाऊँगा, समय के साथ बदलेंगे नहीं वो अपनी खो देंगे। तो अपनी अहमियत पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपने देखा होगा MDG बोला न्यू सिक्योरिटी थ्रेट्स के लिए यूनाइटेड नेशन ने बहुत सारी मांग की। गरीबी मुद्दा बना, गरीबी को हटाना भी वो भी सिक्योरिटी है। केवल युद्ध से खतरा नहीं है, वो गरीब मर रहा है वो भी खतरा है। फिर सचिन जी बोलने लगे और सचिन जी ने काफ़ी अच्छे आर्गुमेंट दिए और काफ़ी अच्छे क्रॉस क्वेश्चन भी किए। बिकॉज इट विल हिंड्रेंस योर सॉवरेनिटी दूसरी चीज़, लेकिन इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि वो 80,000 लोगों को खाना भी दे रहा है और वो लीगलाइज होनी चाहिए कि जो वो सेक्शन दे रहा है वो बिल्कुल लीगल हो। यूएसए के सेंक्शंस को हटाने की कोशिश। देखो अब यहाँ पे क्या है जो मैं प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ कि जब यूएन बन रहा था तो वहाँ पे ट्रेड वगैरह वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। जो तुम ट्रेड की बात कर रहे हो वो GAAT के साथ आया, फिर उसके बाद WTO आ गया 1995 में। तो वो जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो WTO में अगर तुम जाओगे बोलोगे कि सेम टैरिफ बैरियर्स होने चाहिए तो इंडिया पे जो 5% 10% की सब्सिडी दी गई थी मनमोहन सिंह के टाइम से वो खत्म होती जाती थी। पर तुम यही कहते कि अगर सारी ऑल द वर्ल्ड कंट्री जो स्विट्जरलैंड तक हमारा इतना अच्छा दोस्त होने के बाद कहता है कि नहीं यार इंडिया ये लोग गलत कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया हमेशा बात बात पे कहता है राइस सब्सिडी क्यों जा रही है फार्मर्स को, सबको 5% तुम 10%, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को। अंत में मनस्विता जी ने सबको धन्यवाद कहा। इन्होंने पूरा बताया कैसे उन्होंने इसकी शुरुआत की। create this group and now we are working as a team and we are also trying to do something that we can reform in this group. So if after the session, if any one of you, our respected seniors are there, so if any of you would like to suggest something, then please do so that we can do something better. So after listening to everyone, so I am very thankful to all of you that you all had come today and share your perspective. So after listening to everyone's agreed that we need to reform the United Nations. So as we all know that United Nations is the only organization in the whole world where more than 190 countries are together. They sit and they talk, they reform, they pass resolution. But there are, as Abhishek has said, that from the history, from the very beginning, there are some structural reform that we need to do, because when the United Nations was formed, it was there are only 30 or 40 members, but now there are more than 190 members, and there is a democracy deficit, I can say, because there is no representation of the Latin America, there is no representation of the Africa, there is no representation of the South Asia. So the five member permanent that the veto power, which is the, I will say that it is the greatest flaw of the United Nations. We should abolish this veto power system, because United Nations represents the democracy, peace and security. If every country is together, then we need to make United Nations more democratically representative. So for that, I think if yes, there is a need of leadership, that some members are on the top, but for that we can do the election. For example, in the United Nations Security Council, there are elections held on which basis non-permanent member are elected, and India has elected for more than 8 times. So we can use that technique, because we cannot abolish the United Nations completely, because there will be a power vacuum, and how we will collaborate with the global issues if there is no platform to discuss all these issues. So I think that we need United Nations,
order where the most powerful countries are influencing the decision of the other countries. So there will be no representation. So from my perspective, we should abolish this process of veto power, this process of 5 permanent membership. Every country should get the representation. If it is not possible to give them one vote, one country, then we can use some form of election to represent those countries. So these are my conclusions that I had get to know with all of your speeches and all, everything. So thank you everyone. This is my perspective. भैया कार्यक्रम ख़त्म हो चुका है। कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद सब लोग चर्चा कर रहे हैं वीटो पे, दुनिया भर के बवाल पे चर्चा करते हुए हमारी टीम मेंबर्स। तो वही चीज़ कह रहा हूँ, जिसके पास वीटो आ जाए तो नहीं कहेगा कि ना हो, खत्म हो जाए। भाई हमारे पास हम कह कर अगर मान लो इंडिया को वीटो नहीं जाता तो इंडिया सचिन भाई ने बताया कैसे टीचिंग अच्छी होनी चाहिए, कैसे प्रोफेसर्स पढ़ाएं, इस तरह पढ़ाना चाहिए कि लोगों को मज़ा आए, कैसे कैसे अच्छा डिस्कशन होना चाहिए टीचर के द्वारा, टीचर अच्छे से पढ़ाएं, उस पर बात करते हुए अपने विचार रखते हुए। इतना अच्छा तो यही होता है कि आप पढ़ाई के मोस्ट ऑफ दिस में ज़्यादा जरूर क्लियर करेंगे, आपने तो क्लियर नहीं किया। सात लोग सब ये चांसेस है कि असिस्टेंट प्रोफेसर जरूर बनना चाहिए, चांसेस हाई है जेआरएफ के बाद। तो भाई कल को आप पढ़ाएंगे तो बच्चों को लगे ना कि हम कुछ पढ़ाया है, वो नहीं हमेशा हम नहीं चाहते हैं। हमारा तो ये मानना है कि पढ़ाओ तो बिल्कुल इतने बढ़िया से पढ़ाओ कि उनको ये लगे कि ये रोज़ पढ़ाने आए, कभी ना कभी किसी भी फील्ड में जाएंगे, साधक बन जाएंगे तब भी हमारा ही नहीं, बहुत बढ़िया। और जो सबसे ज़्यादा हमें प्रभावित किया है वो इन्होंने किया है। ये टीम विमर्श के साथ ही डिस्कशन करते हुए, चर्चा करते हुए आगे कैसे सुधारा जा सकता है, क्या सजेशन दिए जा सकते हैं और आगे की कार्रवाई चल रही है। वही बड़ा अच्छा चल रहा है। हमारे आदर्श भाई और हमारे शिवम भाई दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं। बाकी पूरी टीम ने अच्छे डिस्कशन किया, चर्चा किया और मुझे लगता है नमस्कार दोस्तों, आज हमारी विमर्श की एक डिबेट थी, तो हमारे साथ विमर्श के साथी सब लोग हैं, सब लोग हाय कीजिए। आज हमने यूएन की रिलेवेंसी पे डिबेट किया और सबने अपने अपने विचार रखे और लोकतंत्र को क्लास में हम लोगों ने देखा। जैसे जॉन डीवी कहते हैं ना, क्लास इज अ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में जो लोकतंत्र था आज हम लोगों ने देखा। तो सभी लोग We are democrats. We all are democrats. We are the people of India. भारत। तो बहुत अच्छी डिबेट थी। और आगे चल के ये जो हैबरमास कहता है ना डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, ये उसका पार्ट था। हाँ, कम्युनिकेटिव डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र है जब चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, सबका बौद्धिक स्तर को ऊपर बढ़ाएंगे। तो यही है एक तरीके का एक स्टूडेंट लाइफ होनी चाहिए। किताब में सब पढ़ते हैं, लेकिन अपने विचार को सबके सामने रखना, सबके विचारों को सुनना, ये एक बड़ी चीज़ है जो कि लोकतंत्र का एक भाग है। हम लोग किताब तो पढ़ेंगे, पर किताब पढ़ पढ़ के भूलना, समझाना, एक प्रक्रिया में भाग लेना। और मुझे लगता है लखनऊ विश्वविद्यालय अगर ऐसे चलता रहा तो जेएनयू, डीयू के ऑक्सफोर्ड को भी पीछे छोड़ सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। ये हमारी टीम है, ये भविष्य के सितारे हैं। तो सभी लोग भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे टीम विमर्श, पॉलिटिकल साइंस, सभी को थैंक यू, जय हिंद। यहाँ पर चर्चा चल रही है अगला टॉपिक क्या होगा, तो हमारे विमर्श के साथी लोग चर्चा कर रहे हैं। अब टॉपिक पर चर्चा हुआ कि आगे के क्या टॉपिक होंगे, क्या टॉपिक चुना जा सकता है, उस पर चर्चा चल रही है।
So basically सचिन हमारा भाई मानना ने है, बताया हाँ, कैसे कि अगर डिस्कशन आप का किसी फ़ायदा हो debate सकता है, participate कैसे करते डिस्कशन हैं, से आप आप अच्छा इंसान बन अभी सकते हैं, connect कैसे आप कर बोलना दिया, सीख सकते हैं, कैसे आगे आप भी आपकी कॉन्फिडेंस बातें अच्छे मिलते असिस्टेंट हैं। प्रोफेसर जैसे भी कि बन आप सब सकते हैं। आप लोग जीआरएफ देते हैं, कोई अधिकारी बनेगा, कोई जीआरएफ देगा, तो आप सब असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। तो भाई आप ऐसा पढ़ाइए कि आपके बच्चों का मन करे पढ़ने का। बच्चे ना कहें कि भाई इनकी क्लास खत्म हो जाए और जल्दी जाएं यार, हम भी जाएंगे। ऐसा पढ़ाइए कि बच्चे कहें कि सर और बढ़ा देते हैं, ये क्लास में खत्म होती। हमारे जीवन में डिबेट और पब्लिक स्पीकिंग इज द प्रिंसिपल ऑफ योर टीचिंग और योर विजडम। और एक और चीज़ है, लोकतंत्र में डिबेट और डिस्कशन का ही महत्व रहता है। बिल्कुल। जो केवल किताबी पढ़ रहे हैं और वो व्यवहार में प्रैक्टिस में नहीं आ रहा है, तो हमें नहीं लग रहा है। किताबें इंसानों ने लिखी होंगी, हाँ, कॉमन सी बात सही है। बात। थॉट्स प्रोवोक हुए होंगे पहले, हाँ। उन्हीं थॉट्स का कंपाइलेशन करके अपनी किताबों के दे दिया। क्योंकि हर व्यक्ति हर जगह जाकर उन बातों को नहीं कह सकता। ठीक है, तो आपने उनको पढ़ा तो उनसे अपने आसपास के लोगों को तो समझाने भर कर रखिए। हाँ। भाई आपने लिबर्टी और जस्टिस पढ़ लिया, अब जस्टिस आपको किसी को समझाना है कि हमारे गाँव में बूढ़े दादा है, भाई जस्टिस है, तो आप जस्टिस कैसे समझाओगे? क्या जस्टिस है? सिर्फ न्याय जस्टिस नहीं है, ठीक है। न्याय करना जस्टिस नहीं। प्लेटो का जस्टिस अलग है, हाँ, रॉस का अलग है। लीगल जस्टिस अलग है, और हम अपना काम सही से कर रहे हैं, ये भी एक जस्टिस है। हाँ। सगुण है, सधर्म है, हाँ। ये सब चीज़ें भी है। जैसे कि अब आम का जो टेस्ट है कि देखिए रस कैसा, मीठा है कि खट्टा है, तो वो आप अगर समझा ले जा रहे हैं तो वही आप महान हैं, वरना आप महान नहीं हो सकते। और महान बनना नहीं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने की हमें ज़रूरत है। अरे वाह, थैंक यू। दोस्तों, विमर्श का सेशन ख़त्म हो गया। बहुत लोग यहाँ पे आए और चले गए, लेकिन ये डिबेट चलती रहेगी। लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर विमर्श का कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा और एक ऐसी पीढ़ी तैयार होगी जो कि बौद्धिक विमर्श की पीढ़ी होगी, जो समझदार होगी, बौद्धिक होगी, बोलना जानती होगी। और ऐसे ही लोकतंत्र आगे बढ़ता है, लोकतंत्र क्लास में बनता है, लोकतंत्र क्लास में बनता है और लोकतंत्र क्लास से ही जाना जाता है। जो बोल नहीं सकता उसको दुनिया गुलाम बनाती है, जो बोलना जान गया उसको हर कोई सुनता है, कान सुन के लगाने पड़ते हैं। तो ये एक पहला सेशन था विमर्श का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। आगे और आने वाली विमर्श की डिबेटें इस पर हम करेंगे। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।